reflect and grow together. Over to you, Miss Saima Imran. Thank you so much. Thank you so much, Arshian. And it is always a pleasure to work with you. Um, there are people saying no voice. Mine or Miss Saima? किसकी आवाज नहीं आ रही है? आपको मेरी आवाज आ रही है तो इसका मतलब है सबको आवाज आ रही है. It's audible. People are saying it's audible. Maybe Okay, let's connect quickly. Am I audible to everybody? Hands on your chat box. Come on, quick. Yes. That means I'm clearly audible. Assalamualaikum everyone, and welcome to an exciting session about मेटाकॉग्निशन. अच्छा, मुझे देखिए एक बात याद रखिएगा कि I may introduce a little bit about myself because I don't want to waste this time. And secondly, मुझे चाहिए होता है बहुत सारा interaction. So please keep your hands on your chat box and be ready for some experiments as well. Are we ready? Are we ready? Yes. Come on. Thank you so much. Brilliant. Thank you so much. Okay, so session का title है Empowering Learners Through Metacognition. We know what empowering is. Yes or no? Do we know what empowering is? Yes, okay. Do we know who learners are? हमारे learners कौन है हमें पता है ना, right? Okay, brilliant. तो जो हमें नहीं पता है most probably या थोड़ा बहुत पता है वो है metacognition. So we are going to focus completely on metacognition. Done deal? Say yes. Yes. Okay, I love the response. Thank you so much. Okay, so let's first thank Ms. Arshian for giving us an opportunity to meet on this particular platform, and thanks Focus for being there to support teachers, to provide, empower you actually, and make you more proficient, more metacognitively strong. So let's talk about what मेटाकॉग्निशन इज. तो सबसे पहला सवाल, व्हाट इज मेटाकॉग्निशन? अगर आपको ऑलरेडी कुछ पता है मेटाकॉग्निशन के बारे में, सो टेल मी. एंड दोज हु हैव डिफिकल्टी हियरिंग, यू माइट वांट टू रिकनेक्ट, प्लीज चेक. Awareness and understanding of our own thought process. Brilliant. That's brilliant, Asma. Okay, awareness about thinking process is called metacognition. Brilliant again, Farah. That's brilliant. Reflect on our own thoughts process. Very good. Finish. Self-awareness. Very good. Self-awareness. Okay. Fatima Jahangi Javnagar is also here thinking about own self. Exactly. So let's break it down. और पहले इस वर्ड को ब्रेक डाउन करके वही बात जो आपने बोली है उसी से कनेक्ट करते हैं. पहला वर्ड है मेटा. मेटा का क्या मतलब है? मेटा का मतलब है अबाउट इटसेल्फ. ठीक है. एंड कॉग्निशन, नेक्स्ट वर्ड है कॉग्निशन. तो कॉग्निशन क्या है? कॉग्निशन इज थिंकिंग. सो इट इज ऑल अबाउट, मेटाकॉग्निशन इज ऑल अबाउट थिंकिंग अबाउट थिंकिंग. हम कैसे सोचते हैं, थॉट प्रोसेस. यू आर वेरी राइट इन योर वर्ड्स व्हेन यू सेड कि इट इज थिंकिंग प्रोसेस, टू अंडरस्टैंड आवर ओन थिंकिंग प्रोसेस. हम सोचते कैसे हैं, हम काम कैसे करते हैं, और ये सब समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड हैव टू अंडरस्टैंड हाउ आवर ब्रेन वर्क्स. डन? Like planning a trip. Exactly. So how our brain works. Does anybody know how our brain works, and how is it connected to what metacognition is? Because metacognition is all about thinking. हम कैसे सोचते हैं. तो in order to understand कि हम कैसे सोचते हैं, we need to understand कि हमारा ब्रेन कैसे काम करता है. तो क्या कैसे फिगर आउट करें? Let's do some experiments. Are you ready for the experiments? और जो एक्सपेरिमेंट्स हम कुछ बिल्ड अपॉन करेंगे. ठीक है. ब्रिलियंट. थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग. Oh, I love the audience actually. तो कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तैयार रहिएगा. एंड वी आर गोइंग टू प्रूव सर्टेन थिंग्स अबाउट आवर ब्रेन. तो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट है जिसमें हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि वी ऑल हैव सम सॉर्ट ऑफ सिनेस्थेटिक एबिलिटीज. ये टेस्ट करके देखते हैं और फिर इसको प्रूव करेंगे कि क्या है ये सिनेस्थेटिक एबिलिटीज. सबसे पहला टेस्ट है बोबा एंड कीकी टेस्ट. अब दिखाऊंगी, ठीक है, आपको दो शेप्स दिखाऊंगी स्क्रीन पे. आपने करना यह है कि यू हैव टू टेल मी कि किस शेप का नाम क्या है. डील? दो शेप्स दिखाऊंगी और दो नाम दिखाऊंगी. यू हैव टू टेल मी विच नेम फिट्स बेस्ट टू विच शेप. ठीक है. ये है
बोबा एंड किकी, तो कौन सा बोबा है, कौन सा किकी है? टेल मी, लेफ्ट वाला बोबा है या राइट वाला बोबा है? जो राउंडेड शेप है वो बोबा है या जो पॉइंटेड शेप वाला है वो बोबा है? ओके, राइट वाला बोबा है। ओके, गुड गुड, यानी कि एवरीबडी ओवर हियर इज सेइंग कि जो राउंडेड शेप वाला है वो बोबा है। मोस्ट ऑफ यू आर सेइंग दिस, एम आई राइट? कि जो राउंड वाले शेप वाला है दैट इज बोबा, एंड जो पॉइंटेड शेप वाला है वो किकी है, एंड दैट्स द राइट आंसर। हाउ डू वी नो? आप लोगों ने ये शेप पहले कभी देखे थे क्या? कभी सुना था इसके बारे में? तो फिर कैसे गैस कर लिया? फिर कैसे गैस किया? हाउ डिड यू गैस इट? This is called synesthetic abilities. We all have this ability कि based on certain properties we can assume things to be that way. ये कहलाती है synesthetic abilities. So we all have it. Agree? ये चीज समझ में आ गई? Kiki sounds exactly Mavish. Kiki sounds like something pointed. So based on the features, we can identify कि क्या हो सकता है, ठीक है? So this is called synesthetic abilities. Okay, second test करें. Are we ready for the second test? agree. Second test के लिए ready हैं? Yes करें जल्दी से. Yes. Okay, good. So second test is called Stroop test. It is called Stroop test. Stroop test में ये होगा कि again I'm going to show you a picture. उसमें जो लिखा हुआ है, ठीक है, अपने आप में करिएगा, मुझे आवाज नहीं आनी चाहिए, अपने आप में करना है आपने, कि उसमें जो लिखा हुआ है उसको रीड करना है आपने। डन डील? मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊंगी, उसमें जो लिखा हुआ है वो आपने रीड करना है। डन डील? ओके, लेट्स डू इट। आई एम शोइंग यू अ पिक्चर, यू हैव टू रीड। स्टार्ट रीडिंग। Start reading. अपने दिल में रीड करना शुरू करेंगे, लाउडली करें अपनी जगह पे। I don't want to hear, but you just do it. Done? Red, blue, orange, purple, orange, blue, green, red, blue, purple, green, red, orange, blue, red, green, purple, orange, red, blue, green, red, blue, purple, orange, blue, red, green, purple, orange, red. Done? आसान था? कोई मसला तो नहीं हुआ? कोई इशू हुआ? Done. Everybody did it actually. Wow. कोई मसला हुआ? कोई प्रॉब्लम हुई? Any issues? No problem at all. Okay. Now the test is yet not done. Wait. I'm showing you the same picture again. मैं आपको वही पिक्चर वापस दिखा रही हूँ. Now what you need to do is you're not supposed to read what's written. आप उसके कलर को रीड करोगे. डन है? आप उसके कलर को रीड करोगे. Don't read the text, read the color. Okay? Okay, here you start. That means you have to read कि पहला वाला orange है. रेड, ब्लू, येलो, पर्पल. नहीं, और देखो ना, रेड है, ब्लू है, ऑरेंज है. ऑरेंज तो है ही नहीं, येलो है. ऑरेंज पहला वाला है, ब्लू है, फिर येलो है, फिर पिंक है, फिर येलो है, फिर ब्लू है, फिर ग्रीन है, फिर ऑरेंज है. हुई गलतियां. क्या हुआ बताएं? What happened? गलतियां हो रही है, बहुत सारी गलतियां हो रही हैं, और स्लो भी हो गए होंगे आप. स्लो हुए थे? Did you slow down? थोड़ा स्लो होना पड़ा, रोकना पड़ा अपने आप को. Yes, a bit tricky. Exactly. So what is Stroop measures? Stroop test ने क्या measure किया, क्या find out किया? हमने क्या इससे find out किया? हमने ये find out किया कि हमारे अंदर एक बहुत ही limited amount में cognitive flexibility है. हम जो है reading text जो है वो हमारे लिए बहुत natural process है, लेकिन अगर उसमें कोई disturbance आती है तो हमारे अंदर dissonance हो जाता है. Dissonance होता है तो हमें अपनी flexibility को increase करने के लिए slow down होना पड़ता है.
हमें स्लो करना पड़ता है अपने आप को ताकि हम उस चीज को, उस चेंज को एडजस्ट कर लें. ठीक है, यस. So when you're working on something that is not part of your routine, it becomes bit more challenging. अच्छा, मुझे ये बताएं, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो मल्टीटास्किंग करते हैं या ये क्लेम करते हैं कि मुझे मल्टीटास्किंग में ही मजा आता है? मी. हाँ, बोले बोले, कितने लोग हैं मल्टीटास्किंग करते हैं, दो काम एक साथ कर रहे होते हैं, गाना सुनते हुए पेपर चेक कर रहे होते हैं, या टीवी देखते हुए अपना कोई पेपर चेक कर रहे होते हैं, या कॉपी चेक कर रहे होते हैं, या फिर कोई इस तरह के दो काम एक साथ कर रहे होते हैं. हाँ, समटाइम्स. आया आया आया, ज्यादा लोग आएंगे. ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. चले फिर तीसरा टेस्ट करें. तीसरा टेस्ट करें, बोले यस. लेट्स डू द थर्ड टेस्ट. ओके, गुड. तीसरा टेस्ट है कॉग्निटिव लोड एंड मल्टीटास्किंग टेस्ट. मल्टीटास्किंग की बात हुई थी ना. सो कॉग्निटिव लोड एंड मल्टीटास्किंग. अब आपने करना ये है, या तो पेपर पेंसिल आपके पास है तो पेपर पेंसिल, वरना एक काम करें कि अपना फोन उठाएं और फिंगर से जो है ना ये काम करें. ठीक है, आपने करना ये कि अपना सिग्नेचर बनाएं. जिस हाथ से भी आप लिखते हैं ना, उस हाथ से अपने साइन को बनाएं. बन गया? और अच्छा, अब एक काम करें, जब आप सिग्नेचर कर रहे हैं तो बैकवर्ड काउंट करें. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 करें. सिग्नेचर करते जाएं और बैकवर्ड काउंट करें. हो गया? इजी था ना, कोई इतना मुश्किल तो नहीं था. वेरी गुड वेरी गुड. चले, टेस्ट पूरा नहीं हुआ है, टेस्ट अभी बाकी है ये वाला. अब आपने ये करना है कि जिस हाथ से आप लिखते हो ना, जैसे सीधे हाथ से जो लोग लिखते हैं वो सीधे हाथ से सिग्नेचर नहीं करेंगे, उल्टे हाथ से सिग्नेचर करेंगे, और जो लोग उल्टे हाथ से लिखते हैं वो सीधे हाथ से सिग्नेचर करेंगे, और उसी के साथ बैकवर्ड काउंटिंग भी करनी है. अब करके दिखाएं. अगर आप सीधे हाथ से लिखते हैं तो उल्टे हाथ से सिग्नेचर करें, लेकिन बैकवर्ड काउंटिंग साथ साथ में करनी है, यानी कि 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. आसान कौन सा था? कौन सा आसान था? कौन सा आसान था, कौन सा मुश्किल था? फर्स्ट वन आसान था ना, सेकंड वाला मुश्किल हो रहा था. तो दिस, बिल्कुल, देयर इज अ चेंज. होता यह है कि जब आप कॉग्निटिव लोड दोनों में, शुरू वाले में, फर्स्ट वाले में क्या हो रहा था, इतनी मुश्किल नहीं थी. ठीक है ना. तो एक जो है वो सिग्नेचर करना है, वो आपके रेगुलर रूटीन में सीधे हाथ से लिखना, नॉट अ बिग डील. और दूसरा जो है वो बैकवर्ड काउंटिंग. बैकवर्ड काउंटिंग थोड़ी सी मुश्किल होगी, ठीक है ना, लेकिन जब आपने दोनों काम कॉग्निटिवली मुश्किल कर दिए, यानी कि सिग्नेचर भी उल्टे हाथ से करनी है और बैकवर्ड काउंटिंग भी करनी है, तो दोनों में कॉग्निटिव लोड बढ़ गया, यानी कि आपके दिमाग पे जोर बढ़ना शुरू हो गया और आपका प्रोसेस स्लो हो गया. तो जब कॉग्निटिव लोड बढ़ेगा तो प्रोसेस स्लो हो जाएगा. अग्री? 3 चीजें समझ में आ गई? एग्जैक्टली, 3 चीजें समझ में आ गई. लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ टेस्ट. चौथे टेस्ट पे जाएं. चौथा टेस्ट है कि मेमोरी एंड कॉग्निटिव फंक्शन टेस्ट. इसमें हम ज्यादा टेस्ट वाला टेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन एक जेनेरिक सिनेरियो लेंगे तो उसके हिसाब से बात करेंगे, लेकिन हाँ, एक कनेक्टिविटी बना देंगे. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल, हम गाड़ी अगर हम ड्राइव करते हैं और हम किसी मॉल में जाते हैं, हम कहीं पार्क करते हैं और ऊपर मॉल में चले जाते हैं, वापस आते हैं तो गाड़ी नहीं मिल रही होती. ऐसा होता है? गाड़ी कहाँ पार्क की थी, गाड़ी कहाँ पार्क की थी, गाड़ी कहाँ पार्क की थी. और इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं फिर? हम कैसे फाइंड आउट करते हैं गाड़ी कहाँ है? कभी कभी ऐसा हो जाता है. बिल्कुल, कैसे फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं? नो पार्किंग वाले ले गए. That's sometimes it happens कि नो पार्किंग वाले उठा के ले जाते हैं. लेकिन ये मॉल में नहीं होता. कमाल. नंबर प्लेट तो करीब जाके देखी तो पता चलेगा इतनी सारी गाड़ियां खड़ी हुई हैं. हम पिलर्स, अगर नेक्स्ट टाइम के लिए हम पिलर्स याद कर सकते हैं, अभी तो हमने याद ही नहीं है. तो व्हाट वी यूजुअली डू इज कि एक तो हम एक काम ये करते हैं कि हम अगर रिमोट है तो रिमोट से ढूंढने की कोशिश करते हैं, गाड़ी कहाँ है, गाड़ी कहाँ है, गाड़ी कहाँ है, गाड़ी कहाँ है.
यस, उसकी लाइट जलती है तो नजर आ जाना शुरू हो जाती है। और दूसरा तरीका ये होता है कि हम सोचते हैं कि हम उतरे थे, हम स्ट्रेट गए थे और फिर यूं गए थे, और फिर मतलब थॉट प्रोसेस में हम रिपीट करते हैं कि हम कहाँ उतरे थे, कैसे गए थे और फिर किस तरह से पहुंचे थे। तो फिर वहां से हमें याद आना शुरू होता है कि अच्छा शायद इस तरफ है ना, वी रिकॉल आवरसेल्व्स। तो ये दो तरीके होते हैं, और ये वाली चीजें बहुत होती है। हम चाबी रख के भूल जाते हैं, हम कैंची रख के भूल जाते हैं, चश्मे रख के भूल जाते हैं, हम मोबाइल फोन रख के भूल। मोबाइल फोन में तो मसला नहीं होता कि रिंगटोन होती है, टंग टंग अपने आप को फोन करके ढूंढ रहे होते हैं। पानी की बोतल कभी कभार, चार्जर, लैपटॉप का चार्जर, माय गॉड। सो व्हाई डू वी फॉरगेट ऑल दीज थिंग्स? अब ये हमें सोचना पड़ेगा कि why do we forget our things, ठीक है? But there are ways to not to forget these things. तरीके हैं बहुत सारे। जैसे आपने कहा कि नेक्स्ट टाइम हम ये करते हैं कि पिलर याद कर लेते हैं कि कौन से पिलर के सामने खड़ी की थी, या कुछ लोग ये भी कर रहे होते हैं, पैटर्न डेवलप कर लेते हैं कि मैं पार्किंग उसी डायरेक्शन में करूंगी। मेरा भी ये है पैटर्न कि मैं एक पैटर्न डेवलप कर लेती हूँ, मैं उसी डायरेक्शन में पार्किंग करूंगी, ताकि ये कि मुझे पता है कि वही होगी, नीचे वाले फ्लोर पे करनी है और जो है वो एक ही डायरेक्शन में करनी है। सो आई नो एग्जैक्टली वहीं पे होगी, फिर रिमोट से ढूंढना भी आसान होगा, ठीक है ना? सो यस, हमने 3 चीजें प्रूव की है कि वी हैव कॉग्निटिव सिनेस्थेसिया, वी हैव कॉग्निटिव डिसोनेंस, जिसमें हमें कॉग्निटिवली फ्लेक्सिबल होना पड़ता है, कॉग्निटिव लोड बढ़ता है तो काम नहीं हो सकता, एंड वी कीप फॉरगेटिंग थिंग्स। अब ये क्यों होता है, हमें समझने की जरूरत है। अब ये क्या समझने की जरूरत है कि आपके दिमाग में, क्योंकि हम वही वाली बात कर रहे थे कि वी नीड टू अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन, तो हमारे दिमाग में 86 बिलियन न्यूरॉन्स है, जिसमें 10,000 कनेक्शंस हैं। हमें याद करने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि चीजों के कनेक्शंस बनाने पड़ेंगे। इंपॉर्टेंट क्या है? चीजों के कनेक्शंस बनाना। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक कनेक्शंस ऑफ थिंग्स, पास्ट से प्रेजेंट का, प्रेजेंट से फ्यूचर का, वी हैव टू मेक कनेक्शन। नाउ टॉकिंग अबाउट कि कैसे, क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या है मेटाकॉग्निशन की नॉलेज, क्या है मेटाकॉग्निशन, एंड देन वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हाउ डू वी रेगुलेट आवरसेल्व्स, ठीक है? तो यहाँ पे मेटाकॉग्निशन में हमें समझ में आना चाहिए कि कॉग्निटिव एबिलिटीज क्या है हमारी, जो हमने 4 एबिलिटीज की बात की, हमारे में सिनेस्थेसिया है, हम जो है डिसोनेंस भी है हमारा, जो है हम फ्लेक्सिबल भी कर सकते हैं। दिस इज ऑल द नॉलेज दैट वी हैव कि हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज क्या क्या है, एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड द टास्क इटसेल्फ। कौन सा टास्क हम कर रहे हैं उसको भी समझना बहुत जरूरी है, ठीक है? एंड देन we have to pick up different metacognition strategies. बहुत सारी पढ़ी हुई होगी आपको metacognitive strategies, भरी हुई मिलेगी नेट पे। So what we are going to do is we are going to understand different strategies and we have to experiment and see कि हमारे पास कौन सी strategy कौन सी काम कर रही है। So ये एक हमारी नॉलेज हो जाएगी। नॉलेज हो जाएगी, उसके बाद हमें रेगुलेट करना है। रेगुलेट यानी कि अपने आप पे एक्सपेरिमेंट करना है और देखना है। अब एक्सपेरिमेंट कैसे करना है कि अपने आप को कंट्रोल सिचुएशन में डालना है। लेट्स से फॉर एग्जांपल कि अगर मैं रीडिंग कर रही होती, पहली दफा जब मैं रीडिंग कर रही हूँ, मैं अपने आप को ऑब्जर्व कर रही हूँ, ठीक है? मैं रीडिंग करती हूँ, पहली दफा मुझे कुछ समझ नहीं आता, दूसरी दफा मैं रीड करती हूँ लाउडली और एक एक वर्ड रीड करती हूँ। तो आई एम ट्राइंग टू मेक माई सेल्फ लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग। मैं मॉनिटर कर रही हूँ कि मुझे सुनने में समझ में आता है या लाउड रीडिंग से समझ में आता है। दिस इज हाउ यू वर्क, कि यू हैव टू एक्सपेरिमेंट। बहुत सारी स्ट्रैटेजीज है मेटाकॉग्निशन की, आपको एक कंट्रोल एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, अपने आप को मॉनिटर करना पड़ेगा, एंड देन यू हैव टू स्टार्ट अप्लाइंग दी स्ट्रैटेजीज, ठीक है? एंड दैट इज कॉल्ड मेटाकॉग्निशन। मेटाकॉग्निशन में पूरा एक साइकिल है कि यू नीड टू प्लान दी अप्रोच। आपने प्लान करनी है पूरे अप्रोच को, अप्लाई करनी है, कोई स्ट्रैटेजी उठानी है, उसको अप्लाई करना है, फिर बैठ के सोचना है दिस वर्क्स फॉर मी, एंड देन अपने टास्क को असेस करना है कि मैं कौन सा टास्क कर रही हूँ, क्या इस पे ये वाली स्ट्रैटेजी चलेगी। वो असेस करने के बाद यू हैव टू आइडेंटिफाई कि ये मेरी स्ट्रेंथ है, आई कैन वर्क लाइक दिस। अब मुझे पता है यहाँ पे आपको ये आएगा कि ये क्या है, किस तरह से होगा। एक चीज मैं आपको बता देती हूँ कि एक तरीका मैं आपको बता देती हूँ। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे लोगों ने कहा कि यू डू मल्टीटास्किंग, राइट? You said right कि you like multitasking, you do multitasking. हम मल्टीटास्किंग में हम क्या रहे होते हैं? हम टीवी देखते हुए काम कर रहे हैं, हम गाने सुनते हुए काम कर रहे हैं, हम किसी के साथ बैठे हुए उस वक्त मोबाइल फोन भी यूज कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल डूइंग इट। और मैं एक बात बताऊं, ये सही नहीं है। वी शुड नॉट बी मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग करने से हम अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे हैं कि किसी बात पे फोकस ना करो, किसी चीज पे फोकस। और जब फोकस नहीं करेंगे हम,
तो हमारे कनेक्शंस नहीं बनेंगे। नो फोकस मीन्स नो कनेक्शन, और जब कनेक्शन नहीं बनेगा तो रिटेंशन नहीं होगी, याद ही नहीं रहेगा कि किया क्या था। और यही वजह है कि जब हम गाड़ी पार्क कर रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं। वी आर trying to be multitasking at that time. We are thinking about something else. We are not thinking about parking at that time. क्योंकि हमने अपने ब्रेन को इस चीज के लिए तैयार कर लिया है कि कोई भी चीज ध्यान से नहीं करनी है, फोकस करना ही नहीं है, और जिसकी वजह से हमारे कनेक्शन नहीं बनते, और कनेक्शन नहीं बनते तो हमें याद नहीं रहता। ठीक है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मल्टीटास्किंग ना की जाए टू योर टास्क। अब ये मसला कि मल्टीटास्किंग ना करो तो क्या करो, अब होता क्या है ये भी देख लेते हैं। अब पढ़ने बैठते हैं तो अब ये आप लोगों ने सबने नोटिस किया होगा कि जब हम पढ़ने बैठ रहे हैं या कोई काम करने बैठ रहे हैं तो हमें ये सारी चीजें याद आ रही है। खाना, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, कभी टीवी में कोई प्रोग्राम आ रहा है, कभी जो है किसी कोई दोस्त का फोन आ गया है कभी कोई दर्द याद आ जाता है, जो दर्द बेहोश हुए होते हैं ना वो दर्द जाग जाते हैं, मुझे ये दर्द हो रहा है, ओ माय गॉड, ये घर की गंदगी है, आई माँ ये घर अनटाइडी हो रहा है, यहाँ से भी गंदा, आई अल्लाह कितना गंदा है घर। होता है ऐसा, या हमें कोई अपना पेट याद आ जाता है, अगर हमारे पास कुत्ता बिल्ली वगैरह है तो वो याद आ जाता है, उससे प्यार आ जाता है, काम नहीं करना है बस ये सारी चीजें याद आ जाती है। व्हाट आर दीज थिंग्स? दीज आर ऑल डिस्ट्रैक्टर्स। ये चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही होती है, और फिर आप मल्टीटास्किंग पे चले जाते हो, आप उनको भी कर रहे होते हो और ये भी कर रहे होते हो, कोशिश करते हो कि डिस्ट्रैक्ट भी हो रहे हो और कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश कर रहे हो। तो कहा यह जाता है कि आपके दो डायमेंशंस हैं, आप दो तरीके से रिएक्ट कर रहे हो। तो या तो आप फोकस थिंकिंग हो सकते हो लर्निंग में, आप या तो फोकस थिंकिंग पे मोड में हो सकते हो, या आप डिफ्यूज थिंकिंग मोड में हो सकते हो। अब ये दोनों मोड्स क्या है? फोकस थिंकिंग मोड वो है जब आपका सारा फोकस कंटेंट पे होता है, आप चाहते हो कि बस मैं बिल्कुल ही इंग्रॉस्ड हूं और मुझे ये करना है, सब कुछ छोड़ दिया, कोई और चीज हाथ नहीं लगाई, बिल्कुल फोकस पे कंटेंट पे है। और एक वो है जब आप कंटेंट पे फोकस करने की कोशिश कर रहे होते हो लेकिन आपको डिस्ट्रैक्शन याद आ रहे होते हैं, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे वो करना है। तो यहाँ आपने करना क्या है, आपने यूज करनी है पिंग पोंग टेक्निक। ये मेटाकॉग्निशन की एक टेक्निक समझा रही हूँ क्योंकि इतनी सारी टेक्निक से सब नहीं समझा सकती। तो पिंग पोंग टेक्निक क्या है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कुछ आपके फोकस थिंकिंग मोड्स हैं और कुछ आपके डिफ्यूज थिंकिंग मोड है। कभी आपने पिंग पोंग, क्या होता है पिंग पोंग बॉल देखिए, कभी टेनिस में होती है टिंग 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 टिंग, देखिए छोटी वाली टेनिस की जो बॉल होती है, दैट इज कॉल्ड अ पिंग पोंग बॉल। हाँ, तो पिंग पोंग टेक्निक यानी कभी ये कभी ये कभी ये कभी ये। सो लेट्स ट्राई इट आउट, ये होगा कैसे। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल कि मैं बहुत स्ट्रेस्ड हो गई हूँ, काम करने की कोशिश कर रही हूँ मगर नहीं हो पा रहा है, मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ, मैं डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ बहुत ज्यादा, हालांकि मुझे करना है काम। फिर हम क्या करते हैं, हम मल्टीटास्किंग वाले पे आ जाते हैं कि ठीक है टीवी चल रहा है और हम काम कर रहे हैं, वो काम जो 10 मिनट में हो सकता है ना उसको 2 घंटे लग जाते हैं। इट टेक्स 2 hours टू कंप्लीट दैट टास्क। तो फायदा क्या, ना हमने एंजॉय किया, ना हमने काम तमीज से किया, कनेक्शन भी नहीं बना, याद भी नहीं रहेगा, और उसपे वो वाला फोकस आया ही नहीं जो होना चाहिए था। काम करने का भी मजा नहीं आता। आई डोंट नो, आई फील लाइक दैट, काम भी अच्छा नहीं हुआ, मजा भी नहीं आया, एंटरटेनमेंट भी नहीं हुई। सो यू हैव टू वर्क ऑन पिंग पोंग टेक्निक। अगर आपको कहीं लग रहा है कि आपको डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे हो, ब्रेक ले लो, टेक अ ब्रेक, डिफ्यूज थिंकिंग में चले जाओ, डोंट बी ऑन फोकस थिंकिंग, डिफ्यूज थिंकिंग में चले जाओ। डिफ्यूज थिंकिंग पे जाने का एक सिंपल फॉर्मूला, यानी कि डिस्ट्रैक्टर्स को एम्ब्रेस कर लो, डिस्ट्रैक्ट कर लो अपने आप को 15 मिनट के लिए, लेकिन टाइम करो, टाइम योरसेल्फ कि मैं 15 मिनट के लिए डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ या 10 मिनट के लिए डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ। टाइम करो कि मैं 15 मिनट के लिए आई एम गोइंग इनटू डिफ्यूज थिंकिंग। और जब आप डिफ्यूज थिंकिंग में जाते हो ना, मेरा ये अपना एक्सपेरिमेंट है कि जब आप काम करते करते डिफ्यूज थिंकिंग में जाते हो ना, तो काम के बारे में या काम को स्मार्टली कैसे किया जा सकता है उसके आइडियाज आना शुरू हो जाते हैं। तो चले जाओ डिफ्यूज थिंकिंग में, चले जाओ, रिलैक्स हो जाओ, लुक एट द बिगर पिक्चर, ठीक है। एंड डिफ्यूज थिंकिंग में आप कुछ ऐसी चीजें करो जिसमें आप इंजॉय भी करो और आप रिफ्रेश भी हो जाओ। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग एक्सरसाइज करना इंजॉय करते हैं, एक्सरसाइज कर ले, लेकिन टाइम करें, 15 मिनट की टाइमिंग लगाए, 15 मिनट के लिए एक्सरसाइज करें, कम बैक, ठीक है। या फिर थोड़ा स्ट्रेस ले लो, जब एक हो रहा होता है ना कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा होता है और काम भी आप कर रहे होते हैं ना, काम नहीं हो रहा होता, 15 मिनट के लिए रिलैक्स हो जाओ, हट जाओ, छोड़ दो काम को, आराम से बैठ के स्ट्रेस ले लो। थोड़ा सा स्ट्रेस अच्छा होता है जिंदगी के लिए।
आई नो पीपल विल से ये क्या बात हुई, लेकिन सीरियसली ऑन अ सीरियस मोड, जब आप काम करते हुए स्ट्रेस लेते हो तो आपका माइंड कॉग्निटिव लोड के पीक पे होता है, जो हमने बात की अभी कि कॉग्निटिव लोड हमारा पीक पे चला जाता है और इसी में लोग कोलैप्स कर जाते हैं, इसी में बेहोश होते हैं, इसी में बीमार पड़ते हैं, सब कुछ इसी में होता है। छोड़ दो थोड़ी देर के लिए काम, 15 मिनट के लिए ले लो स्ट्रेस, बोलो मैं डिफ्यूज मोड में हूँ और मैं स्ट्रेस ले रही हूँ, 15 मिनट टाइम करो, स्ट्रेस ले लो, फिर जाके काम करोगे अच्छा काम हो जाएगा। सीरियसली ट्राई इट आउट। तीसरा तरीका ये भी हो सकता है, खाना खाओ, लेकिन पेट भर के खाना नहीं खाना है। पेट भर के खाना खाया तो नींद आ जाएगी, पेट भर के नहीं खाना है, थोड़ा सा खाना है, थोड़ा सा अपने आप को ट्रीट करना है, थोड़ा सा खुश करना है। दिस इज लाइक यू नो लाइट फूड। ऐसा नहीं कि पेट भर के हो खाना वाना खा लिया अब बेहोश, क्यों? क्योंकि पेट भर गया है, नींद तो आएगी, ठीक है। सो नॉट टू हैवी फूड और नॉट टू मच फूड, जस्ट समथिंग टू फ्रेशन यू अप, मेक्स यू हैप्पी एंड फ्रेशन यू अप, दैट्स इट, ठीक है। या फिर जो लोग चाय पसंद करते हैं या कॉफी पसंद करते हैं, 15 मिनट की ब्रेक लें, अपनी चाय को एंजॉय करें। वो जो आप चाय काम करते करते चाय पीते हो ना चाय का मजा आता है ना काम का। रिलैक्स हो जाओ, छोड़ दो काम को, चाय पियो आराम से बैठ के। डोंट डू मल्टीटास्किंग, ना चाय एंजॉय कर पाओगे ना ही काम होगा। छोड़ दो काम को, 10 मिनट 15 मिनट एंजॉय योर, एग्जैक्टली। बंचिंग व्हाइल डूइंग वर्क नहीं होना चाहिए। व्हाइल डूइंग वर्क बंचिंग इज बैड, you will not even know what you're doing to yourself। इसीलिए हम इतने बलजी हो जाते हैं कि हम काम करते रहते खाते रहते, हमें यही नहीं पता होता, क्योंकि हम फोकस ही नहीं कर रहे कि हम काम कितना कर रहे हैं और खा कितना रहे, एंड काम भी लंबा हो जाता है। अगर आप एंजॉय करते हो, टाइमर लगाओ, सो जाओ। स्लीप का भी क्राइटेरिया है, वो पता है आपको, स्लीप साइकिल का, वो किसी और दिन बताऊंगी, ठीक है। तो स्लीप फॉर 15 मिनट, पावर नैप ले लो, रिलैक्स कर जाए, सोए उठे वापस एंड देन स्टार्ट वर्किंग, ठीक है। It will help seriously, double the energy और quicker the task। लेकिन जब आप काम कर रहे हैं ना, फिर आप leave all your distractions aside और बोल दे अपने आप को कि अब 15 मिनट मैंने ऑलरेडी एक लिया है डिस्ट्रैक्टर, अब मुझे आधा घंटा कम से कम काम करना है, आधे घंटे बाद फिर मैं डिस्ट्रैक्ट कर लूंगी। इससे आप मोटिवेटेड भी रहोगे काम की तरफ, ठीक है। अगर आपको सफाई पसंद है, जैसे मैं बहुत ज्यादा इस तरह की हूँ, तो मैं ये करती हूँ कि 15 मिनट का ब्रेक लेती हूँ, मैं अपना कमरा पूरा सजाती हूँ, आई बिकम हैप्पी, आई लुक एट माई थिंग्स एंड आई गेट हैप्पी एंड देन आई स्टार्ट वर्किंग अगेन। तो अगर लेकिन कमरा साफ करना काम नहीं होना चाहिए। अगर आप उसको लगता है कि स्ट्रेस है और काम है तो मत करिएगा। इफ इट मेक्स यू हैप्पी देन डू इट, ठीक है। सो देयर आर नंबर ऑफ, दिस इज वन metacognitive strategy that can help you to concentrate better, learn better, understanding that your brain needs that relaxation, it needs that फ्लेक्सिबिलिटी, या मैं ये कहूंगी कि टाइम टू रिलैक्स, ठीक है। तो ये एक स्ट्रैटेजी है। इसके अलावा भी मेटाकॉग्निशन की बहुत सारी स्ट्रैटेजीज है, मैं सारी नहीं बताऊंगी, मैं सिर्फ थोड़े से नाम बता देती हूँ। यू माइट वांट टू गो एंड सर्च योरसेल्फ एंड आई वुड सजेस्ट इफ यू सर्च फॉर इट। एक तो हमने ये वाला कर लिया, पहली स्ट्रैटेजी जो कि एम्ब्रेस डिस्ट्रैक्टर थी, ये पहली थी जो मैंने आपको बताई, पिंग पाउंड टेक्निक वाली। दूसरी है स्पेस रेपिटेशन। थोड़ा बहुत बता देती हूँ कि स्पेस रेपिटेशन में ये होता है कि जो भी आप काम कर रहे हो ना, उसको छोटे चंक्स में डिवाइड करो और उसको सेगमेंट करो कि ये मैं अभी करूंगी, 2 दिन बाद फिर इतना करूंगी, फिर 3 दिन बाद इतना करूंगी। तो जब आप पलट के आते हो ना, तो आपकी एनर्जी का लेवल डिफरेंट होता है। सो दैट्स कॉल्ड स्पेस रेपिटेशन। फिर एक फाइबल्स टेक्निक है। फाइबल टेक्निक इज व्हेन यू टीच समबडी एंड देन मेकिंग कनेक्शन वाली एक टेक्निक है। यू रिसर्च एंड यू विल फाइंड कि मेटा की बहुत सारी स्ट्रैटेजीज है। जैसे मैंने आपको पहले you have to pick some strategy, apply it, experiment and see कि कौन सी आपके लिए बेस्ट है और कौन से टास्क पे कौन सी सही फिट होगी। ये जरूरी नहीं है कि एक मेटाकॉग्निशन एक्टिविटी जो वो है स्ट्रैटेजी है वो सब पे अप्लाई हो जाए, ठीक है। You have to, as I told you earlier before also, कि अप्लाई करो और फिर ऑब्जर्व करो, मॉनिटर करो अपने आप को। अगर समझ में आती है दूसरी दफा अप्लाई करके देखो एंड यू विल बी एबल टू ट्रेन योर ब्रेन, अपने ब्रेन को, अपने थिंकिंग प्रोसेस को कंट्रोल। एंड these are different strategies to control your brain, to make them understand, make yourself understand how do I learn, and that is called metacognition. That brings me towards the end of the session. Thank you so much for being brilliant audience, and here are my contact details.
phone number, email address, location of Teach. I am founder of, even आपको introduce भी नहीं कराया because a lot of people know me otherwise also. Let me introduce myself. My name is Saima Imran और मुझे education की field में तकरीबन 22 साल हो चुके हैं, and I have 2 YouTube channels. I'm working with a number of organizations. I'm also a convener of Sindh Board of